The first chapter is the living world. The living world. We have already discussed the questions for the same, all the MCQs part. Okay, quite easy and quite basic chapter. Just a minute, I share the screen. Okay, so this was our first chapter, the living world. We'll just go quickly through it. Firstly, in this chapter, we discussed the characteristics of living organism. What are the characteristics by which you can decide or segregate living organism from non-living organisms? Okay, the first was growth. Also, one more thing: the first chapter and second chapter are quite connected to each other. Okay, so in many books, you will find the content of the first and second chapter interchangeable. So the chapter of diversity, जो हमारा second chapter था, and this chapter living world, they are quite interconnected. Because अगर living world को देखें तो there in this chapter we have just discussed the characteristics of living organisms, and then what we do is we discuss the different identification clues and everything which is given in the next chapter. So always whenever you study this chapter, study chapter 1 and chapter 2 together. Okay. So in chapter 1, that is the living world, we discussed about the characteristics of living organisms. Okay. How growth, what is growth actually? Growth means either increase in number or increase in size of the cell. Okay. So usually the number of cell increases and not the size of cell which increases. But again, growth is not a defining property, because if any living organisms, for example a rock के ऊपर भी sedimentation होगा तो उसका भी size increase होगा, but we will not consider that as growth. So growth is not considered as a defining property. Reproduction, it is either sexual or asexual reproduction. Okay, we know that non-living organisms do not reproduce, but reproduction का definition अगर हम देखें, reproduction means living organisms or organisms which can make other organism like their own self is called as reproduction. तो अगर एक living organism अपने ही जैसे living organisms को produce करता है, उसको हम reproduction बोलते हैं. इसमें algae, hydra, ये सारे examples आएंगे जहां पर हम asexual reproduction पढ़ते हैं, like budding, then fragmentation, binary fission. Okay, यहाँ even reproduction is not considered to be a defining property, because again, if I take the example of a non-living substance, due to some reason अगर non-living substance छोटे छोटे pieces में टूट जाता है, so if a rock is broken down into smaller pieces, so every part of the rock is similar to the original rock, which means नए rock produce हुए from the original old rock, तो ये भी एक reproduction होगा. इसलिए reproduction को भी हम defining property नहीं बोलते. Again, there are mules मतलब खच्चर, टट्टू हमने डिस्कस किया था. लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसिबल है. इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो यंग जनरेशन है ना, जो नेक्स्ट जनरेशन जो आता है एग्जिस्टेंस में, इवन दे शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस. ओके, तो म्यूल्स या खच्चर या टट्टू जिसको हम बोलते हैं, दैट इज अ रिप्रोडक्शन ऑफ हॉर्स एंड डोंकी. दैट इज अ रिप्रोडक्शन ऑफ हॉर्स एंड डोंकी.
तो हॉर्स और डोंकी को जब भी मेट करवाया जाता है तब हमको म्यूल मिलता है। अब ये जो म्यूल है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, दिस म्यूल इज स्टेराइल। ओके, सो ये भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन है, मगर जो नेक्स्ट जनरेशन है दैट इज अनेबल टू रिप्रोड्यूस, सो इसको भी हम एक्सक्लूड करना पड़ेगा हमारे रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन से। सेम स्टेराइल वर्कर बीज कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हु आर अनेबल टू कंसीव, वो भी ये कैरेक्टर से एक्सक्लूड हो जाएंगे, इसलिए अगेन रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देन कम्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिक रिएक्शंस, ये दोनों ही टाइप के जो रिएक्शंस हैं ये सेल के अंदर हो रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ओके, बिकॉज ये सिर्फ सेल में ही होगा और सेल सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ही होते हैं। देन कम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, की किस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने होंगे, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या फीचर्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या फीचर्स होते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स जिसको हम बचपन में रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस बोलते थे, that is a living organism has the property of consciousness. Consciousness matlab that living organism is aware of the things happening in and around it. तो जो चीजें वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास हो रही है उसका वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पता होता है। लाइक प्लांट्स रिस्पॉन्स टू लाइट, दे रिस्पॉन्ड टू वाटर। ओके, तो ये सारे जो मूवमेंट्स है, ये सारे जो मूवमेंट्स है ये होते हैं ड्यू टू सम स्टिमुलस या सम स्टिमुलाई which is given to the particular organisms। और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही वो स्टिमुलस को या वो एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हमको याद रखनी है, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। ओके, यहाँ पर भी एक छोटा सा पॉइंट आता है जो जिसको हम बॉर्डर लाइन पे बोलते हैं, बिकॉज ह्यूमंस अकेले जो सेल्फ कॉन्शियस है, सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है दे नो अबाउट देमसेल्फ, आल्सो दे नो अबाउट अदर्स, they are aware of the surrounding, okay, but if the human being is brain dead, okay, which means he does not have control, he or she does not have control about their normal bodily functions, that person is living but it is basically living on machines with the help of machines, तो उसको हम डेड बोलते हैं। इसलिए उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है दैट इज ब्रेन डेड। बट ये ब्रेन डेड एक्सेप्शन है, उसके अलावा जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सारे कॉन्शियसनेस कवर कर देता है। तो every organism will have this property of consciousness. So there are two properties which you have to remember: metabolism and consciousness. Okay, then comes body organization. Then comes body organization. Body organization is how a living organism is either cellular, tissue level organization, organ level organization और organ system level organization। ऐसे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कौन सा एनिमल कौन से ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आता है वो हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम लोग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग चीजों में डिवाइड करते हैं। Some other characteristics of living organisms are shape and size, life cycle, movement, self-regulation, variation, adaptation, healing and repair, excretion and death। ऐसे अलग अलग और भी फैक्टर्स है जो हम कंसिडर करते हैं, but all these factors more or less either will come under cellular organization or metabolism of growth। ओके, तो ये था तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आता है लिविंग वर्ल्ड का डाइवर्सिटी वाला पार्ट, जिसमें हमने टैक्सोनॉमी पढ़ा था। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज बेसिकली the a branch of biology that deals with principles and procedures of classification। Taxonomy, it is the branch of biology which deals with procedures and principles of classification। हम लोग
टैक्सोनॉमी में अलग अलग प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स देखते हैं. उसके अलावा टैक्सोनॉमी में वी सी व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एंड अराउंड अस. डाइवर्सिटी को देखते हैं, उसको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है वो देखते हैं. एंड देन वी और द सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प अस इन डाइवर्सिटी. कौन सी चीजें हमको टैक्सोनॉमी के लिए हेल्प करती है. सबसे पहले याद रखना है टैक्सोनॉमी में 4 मेन चीजें होती है. नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये 3 चीजें होती है. ओके उसके बाद आता है अफिनिटीज. अफिनिटीज मतलब यू हैव टू show relationship between two different kinds of plants or animals. Relationship between two different type of plants or two different types of animals, कि कौन सा एनिमल या कौन सा प्लांट कौन से दूसरे प्लांट से रिलेटेड है. ठीक है. रिलेशन आइदर इट कैन बी फॉर फूड रिलेशनशिप, कि ये ऑटोट्रॉफ है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है. इसके ऊपर कितने एनिमल्स डिपेंडेंट है. या तो इट विल बी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, whether this particular plant or this particular animal may be evolved from this particular animal, or this animal and this animal are closely related. Usually we don't consider evolutionary relationship into taxonomy. उसके लिए एक दूसरा ब्रांच होता है जिसको हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं. ठीक है. सिस्टमैटिक्स भी आगे आएगा. सिस्टमैटिक्स में मोस्टली हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं. यहाँ पे सिर्फ हम प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप देखते हैं, या इन जनरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप देखते हैं. ओके. सो टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन आएगा. यू शुड व्हाट आर द प्लांट्स या व्हाट आर द एनिमल्स के फीचर्स है जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं. अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव अ नेम टू इट. आपको एक पर्टिकुलर नाम देना होता है उसको. देन यू हैव टू क्लासिफाई देम either into different types of kingdoms which you already know, or depending upon उनके characters आपको उनको particular kingdom या particular taxa में रखना पड़ेगा. ओके. जो old systematics था और branch related to taxonomy था, उसमें बहुत सारी चीजें दी. अच्छा ओके. अगेन ये जितना भी मॉड्यूल का ये जो फर्स्ट पार्ट और इंट्रोडक्टरी पार्ट और ये चैप्टर का इनिशियल पार्ट है ना, इसमें आपको बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे. आई रिपीट, इसमें आपको बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे और आपको हर एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है. ठीक है. जैसे एपीडी कॉन्डॉयल ने कौन सा बुक लिखा था, या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ ज़ूलॉजी कौन है. ऐसे बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है जो आपको ये मॉड्यूल के एंड में आपको मिल जाएंगी. ओके. तो जहां पर भी ये सारी चीजें आती है ना, हमेशा याद रखो, मेक इट अ प्रैक्टिस. एग्जाम्पल्स और साइंटिस्ट के नाम. जैसे ही आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो ना, तो चैप्टर का टाइटल डालने के बाद या चैप्टर के नोट्स लिखने के बाद ना, चैप्टर के लास्ट पेज में आपके नोट्स का आपने वो चैप्टर के लिए जो नोट्स बनाए उसके लास्ट पेज में आप सारे एग्जांपल्स लिख लीजिए वो चैप्टर में जो जो आते हैं, और उसमें जो भी साइंटिस्ट के नाम आते हैं या जो भी ऐसे फिलोसोफर्स, थिंकर्स, रिसर्चर्स, डिस्कवरर्स के नाम आते हैं, आपको वो नाम लिखने होते हैं कि इसने क्या किया था, उसने कौन सा बुक लिखा था, उसने कौन सा पेपर पब्लिश किया था, उसने कौन सा वर्ड कॉइन किया था. ओके. ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है, सो दैट व्हेनेवर यू रिवाइज द चैप्टर, द लास्ट थिंग यू स्टडी इज दोज नेम्स एंड एग्जांपल्स, बिकॉज़ वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और वही सबसे ज्यादा हम भूल जाते हैं. ओके. सिस्टमैटिक्स वाज प्रपोज्ड बाय लीनियस. सिस्टमैटिक्स प्रपोज किया था लीनियस ने. And systema means arrangement of organisms. Then comes systematics is basically the evolutionary relationship of animals. Okay. Neo-systematics is a new branch which was given by Julian Huxley. Neo-systematics was given by Julian Huxley. It includes all external and internal structures along with cell processes and ecological information. तो ये सारी चीजें आती है न्यू सिस्टमैटिक्स में. न्यू सिस्टमैटिक्स मतलब अगेन सिस्टमैटिक्स का एक पार्ट, मगर वो थोड़ा सा और डेवलप पार्ट है. उसमें और ऐसी चीजें आएंगी जो हमको पहले नहीं दी गई थी. ठीक है. इट इज यूज्ड टू नो द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म. एज आई टोल्ड यू, सिस्टमैटिक्स जब भी आएगा ना, आपको एक चीज याद रखनी है कि ये इवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है. सिस्टमैटिक्स टीचेस अस इवोल्यूशन.
Okay, new systematics is mainly based upon evolutionary as well as genetic relationship. सिस्टमैटिक्स में आता है इवोल्यूशन और न्यू सिस्टमैटिक्स में आएगा इवोल्यूशन के साथ साथ जेनेटिक रिलेशनशिप. ओके, देन कम्स योर डेटा. फिगर्स आते हैं जैसे कितने स्पीशीज है. 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है. सबसे ज्यादा स्पीशीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उसके बाद कोरल रीफ में है. सबको कोरल रीफ पता होगा. समुद्र के अंदर अंडर वाटर जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं रॉक्स के या ऐसे कलरफुल, वहां पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहां पर छोटे छोटे फिश वगैरह रहते हैं, उसको हम कोरल रीफ बोलते हैं. ओके, देन कम्स आवर नॉमेनक्लेचर पार्ट. नॉमेनक्लेचर इज द आर्ट ऑफ नेमिंग. किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाता है. वी यूज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब बाई मतलब टू, बाई मतलब टू, टू वर्ड नॉमेनक्लेचर, टू वर्ड नॉमेनक्लेचर. इसको दिया था कार्लोस लीनियस ने. कार्लोस लीनियस ने दिया था. ठीक है, इनका नाम तुम आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में सुनने वाले हो. ही wrote a book called Species Plantarium. ओके, और उसमें ये सारे प्लांट्स को किस तरह से नेमिंग देना है, किस तरह से प्लांट का नेम किया जाना चाहिए, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन था. उसके बाद यू हैव ICBN. ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. प्लीज याद रखो ICBN, अगर बी पहले आता है तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है. एक और है ICNB, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. तो अगर बी बाद में आता है तो बैक्टीरिया का है. ओके, किस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं कोई भी ऑर्गेनिजम्स का. इट इज बेसिकली हम लोग कोई भी साइंटिफिक नेम ना 2 वर्ड का होता है. एवरी साइंटिफिक नेम विल हैव 2 वर्ड्स. ओके, जस्ट अ सेकंड, आई विल राइट एंड शो यू किस तरह से लिखना है. अगर वो टाइप्ड है तो उसको इटैलिक्स में लिखना है. आप ये फॉन्ट देख सकते हो, ये जो फॉन्ट है जिसमें हम लोग चीजों को टेढ़ा लिखते हैं कंप्यूटर में, या कभी भी कोई भी वर्ड रिटन होगा, टाइप्ड होगा, तो उसको हम जब टेढ़ा लिखते हैं उसको बोलते हैं हम इटैलिक्स. इटैलिक्स, ITALLICS. ये एक फॉन्ट है, हमेशा हमें लिखना है उसको इटैलिक्स में. अगर उसको हाथ से लिख रहे हो तो हमेशा उसको अलग अलग लिखना है. दोनों वर्ड को अलग अलग लिखना है. I'll just switch on the video. ओके, दिखाई दे रहा है. इस तरह से लिखना है. दोनों 2 वर्ड्स के बीच में गैप होना चाहिए और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है. आई रिपीट, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है. ओके, इसमें जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी कैपिटल. ये वर्ड का फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल. ओके, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट. स्पेसिफिक एपिथेट ये होता है स्पीशीज का नाम, ये होता है जीनस का नाम. इस तरह से हमें कोई भी साइंटिफिक नेम लिखना है. ठीक है, इंडिविजुअली लिखना है. दोनों के बीच में गैप होना चाहिए. अंडरलाइन करना है सेपरेटली. याद रखना उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है. अगर आप एक कॉमन अंडरलाइन करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल. इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक, इसको हम बोलते हैं एपिथेट. ये दिया था कार्लोस लीनियस ने. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का. मैंजीफेरा इंडिका, दैट इज मैंगो. उसको हम लिखेंगे इस तरह से मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा इंडिका. इसमें भी देख सकते हैं आप, एम बड़ा है, आई छोटा है, दोनों के बीच में गैप है और दोनों को अंडरलाइन किया गया है सेपरेटली. दिस इज हाउ यू शुड राइट अ साइंटिफिक नेम. ओके, कभी कभार हम नाम के बाद में जो साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया उसके इनिशियल लिखते हैं. जैसे कार्लोस लिनियस ने डिस्कवर किया था तो उसके आगे लिन लिखते हैं, LINN. बट ये लिखना कंपलसरी नहीं है, ये तुम स्किप कर सकते हो. ओके, बट ये आपको कंपलसरी लिखना है, सेपरेटली लिखना है. कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, अंडरलाइन करना है सेपरेटली.
हाँ, कुछ डाउट है? नो सर। ओके, आगे बढ़े। सोलेनम ट्यूबरसम इज पोटैटो, मैंजिफेरा इंडिका इज मैंगो। ठीक है। जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम जो फर्स्ट वर्ड होता है दैट इज जेनरिक नेम, और जो लास्ट वर्ड होता है उसको हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं या स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है। अभी हम देखेंगे कौन से अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होते हैं। ओके। उसके अलावा हम लोग देखेंगे हर्बेरिया क्या है। बहुत बार सिमिलर सिमिलर नाम भी होते हैं। ठीक है। जैसे नाजा नाजा, इंडियन कोबरा या किंग कोबरा को हम लोग नाजा नाजा बोलते हैं। अगर दो वर्ड रिपीट होते हैं तो उसको हम लोग इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच में टोटोनिम बोलते हैं या टोटोलॉजी बोलते हैं। तो अगर दो वर्ड आते हैं तो उसको टोटोनिम बोलते हैं। रैटस रैटस, रैट। एक और है मस मस्क्यूलस, मस मस्क्यूलस, मस मस्क्यूलस, ये है सफेद चूहा। द वाइट लैब वाला माइसेट इज कॉल्ड मस मस्कुलस, वो भी एक टोटोनिम है। तो अगर सिमिलर नाम भी हो सकते हैं। अच्छा, प्लांट्स के नाम लिखने के लिए जो काउंसिल है दैट इज ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल का नाम लिखने के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। उसके अलावा अगेन सेम चीज है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, फिर सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। ओके। स्पेसिमेन को स्टोर करने के लिए हर्बेरियम रखते हैं। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज बेसिकली अ बिग शीट ऑफ पेपर। ऐसा बड़ा सा शीट ऑफ पेपर होता है जिसपे हम प्लांट के पार्ट्स को ड्राई करते हैं। ठीक है। प्लांट्स के पार्ट को ड्राई करते हैं हम, और वहां पर उसको रख देते हैं। जैसे सपोज ये प्लांट को यहाँ पे चिपकाया गया है, ड्राई करके उसके सारे अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पे चिपकाते हैं। और यहाँ पर साइड में ये वाले पार्ट में जो डार्क कर रहा हूँ मैं, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, ये वाले पार्ट में उसका सारा इंफॉर्मेशन लिखते हैं हम लोग हर्बेरिया का। आई विल शो यू सम इमेजेस। ओके, व्हेन वी फिनिश द रिवीजन आई विल शो यू द इमेजेस ऑल एट वंस। अब तभी हम देखेंगे एग्जैक्टली हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम में बेसिकली अगर मुझे प्लांट को, अगर मैं नहीं देख पाता हूँ, मेरे वहां पर वो पर्टिकुलर प्लांट नहीं ग्रो करता है, ठीक है, और अगर मुझे प्लांट के स्ट्रक्चर्स और प्लांट के बाकी सब चीजें को स्टडी करना है तो मैं हर्बेरियम यूज कर सकता हूँ। क्योंकि हर्बेरियम में वही प्लांट के पार्ट्स को स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा जाता है और उसका सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड हर्बेरियम। हर्बेरियम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द प्लांट स्पेसिमेन। उसके अलावा हमने अलग अलग टैक्सा, टैक्सा मतलब कैटेगरीज पढ़े। जैसे टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन करने के लिए एक ब्रांच है। उसमें ना अलग अलग सेक्शंस होता है कि ये एनिमल को यहाँ पे रखेंगे, ये ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे रखेंगे। तो वो जो अलग अलग सेक्शंस है, ओके, वो अलग अलग सेक्शंस को हम लोग टैक्सा बोलते हैं। उसमें सबसे छोटा आता है स्पीशीज, सबसे बड़ा आता है किंगडम। सबसे छोटा आता है स्पीशीज, सबसे बड़ा आता है किंगडम। ओके। स्पीशीज सबसे छोटा कैटेगरी या सबसे छोटा टैक्सा है। ओके। स्पीशीज में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स आपस में ब्रीड कर सकते हैं, जिनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिनके बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है और जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, वो सब आते हैं सेम स्पीशीज में। ओके। तो जितने भी टाइप के डॉग्स तुम देखते हो, कितने भी डॉग्स, पोमेरिनियन हो गया, बुलडॉग हो गया, डॉबरमैन हो गया, सबके सब डॉग्स है, सबके सब आपस में ब्रीड कर सकते हैं, तो वो आएंगे सेम स्पीशीज में। ठीक है। फिर जो रिलेटेड स्पीशीज होगा वो आएगा जीनस में। ठीक है, रिलेटेड स्पीशीज आएंगे जीनस में। जैसे फॉर एग्जांपल दो टाइप के कौवे नॉर्मली होते हैं, एक होता है पहाड़ी कौवा होता है और एक होता है नॉर्मल कौवा। पहाड़ी कौवा पूरा ब्लैक होता है और वो जो नॉर्मल कौवा होता है उसके नेक के ऊपर ग्रे पैच होता है, वो थोड़ा सा ग्रे होता है गर्दन के तरफ से। तो ये दोनों है क्रो, ठीक है, बट दोनों ब्रीड नहीं करेंगे कभी। दोनों का एरिया अलग अलग होगा, दोनों
काफी डिफरेंट होंगे इन देयर लाइफ साइकिल, तो वो दोनों आएंगे सेम जीनस में। फिर रिलेटेड जीनस आएंगे एक फैमिली में, ठीक है, जैसे कैट फैमिली होगा, कैट फैमिली में सारे के सारे आ जाएंगे, पैंथर, लायन, लेपर्ड, टाइगर, चीता और घर की बिल्ली, सबके सब वो सेम फैमिली में आ जाएंगे। उसी तरह से फैमिली के बाद आता है ऑर्डर। ओके, जो सेम टाइप के फैमिलीज होते हैं वो आते हैं एक ऑर्डर में, जैसे कैट्स और डॉग्स आते हैं कार्निवोरा में, दोनों ही कार्निवोरस एनिमल्स है, दोनों के पास कनाइन है। ओके, फिर आता है क्लास। क्लास मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेम ऑर्डर में आते हैं, जैसे क्लास मेमेलिया, क्लास मेमेलिया में सारे ही आ जाएंगे, ह्यूमंस भी आ जाएंगे, कैट्स भी आ जाएंगे, डॉग्स भी आ जाएंगे, भालू भी आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स है वो सबके सब सेम क्लास में आएंगे। क्लास के बाद आता है डिवीजन या फाइला। ठीक है, डिवीजन यूज करते हैं हम प्लांट्स के लिए, फाइला यूज करते हैं हम एनिमल्स के लिए। तो सेम क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म विल कम इनटू वन फाइला। ओके, देन कम्स योर किंगडम। फिर आता है किंगडम। किंगडम क्या होता है, कोई भी, जैसे 5 मेन किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमेलिया। तो ये जो सारे एनिमल्स या सारे प्लांट्स को हम एक किंगडम में रखते हैं। तो किंगडम विल बी द बिगेस्ट टैक्सा एंड स्पीशीज विल बी द स्मॉलेस्ट टैक्सा। ओके, इसको लाइन से याद करना है, या तो किंगडम से स्पीशीज याद करो या तो स्पीशीज से किंगडम याद करो। ओके, मैं यूजुअली किंगडम से स्पीशीज याद करता हूं। ओके, तो पहला आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इस तरह से होता है। फाइलम फाइलम के बदले प्लांट्स में आएगा तुम्हारा डिवीजन, उसके अलावा बाकी सबका सब सेम होगा। आई होप दिख रहा है सबको। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसको किस तरह से याद करना है, ठीक है, कोई भी एक किंगडम होता है, कोई भी राजा का राज्य होता है, उसमें सबसे पहले आता है किंग, फिर आता है प्रिंस, फिर आता है क्लास ऑफ जनरल सेक्रेटरी, मतलब सारे मंत्री। ओके, तो इस तरह से याद करना है, किंग, प्रिंस, क्लास ऑफ जनरल सेक्रेटरी। ओके, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ओके, कुछ लोग को ऐसे याद होता है तो तुम वैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, बट याद रखना है स्पीशीज सबसे छोटा है, किंगडम सबसे बड़ा है। आई होप दिस इज क्लियर। उस तरह से 7 मेन कैटेगरीज या 7 मेन टैक्सा है। उसके अलावा भी सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली, ये सारी चीजें आ सकती है, मगर ये 7 मेन है। ओके, फिर 2-3 एग्जांपल दिए गए हैं। देन कम्स द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अडोल्फ मेयर ने सबसे पहले टैक्सॉन यूज किया था एनिमल्स के लिए। H.J. लैम ने यूज किया था टैक्सॉन फॉर प्लांट्स। ठीक है, हायरार्की मतलब अलग अलग बोलते हैं ना, जैसे जैसे मैंने बताया था, पहले सबसे छोटा होगा नॉर्मल मैन, फिर उसके बाद आएगा उसके ऊपर वाला कोई सपोज बिजनेसमैन होगा, फिर उसके ऊपर आएंगे बड़े व्यापारी, फिर उसके ऊपर आएंगे मंत्री, उसके ऊपर आएगा राजा। उसी तरह से ये जो लेवल होता है अलग अलग, फ्रॉम हायर टू लेवल या हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, उसको हम बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट होता है और वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। your आंसर शुड बी स्पीशीज। ओके, फिर आपको दिया है कि टैक्सॉन के पीछे अगर फाइटा आया तो वो डिवीजन है, जैसे स्पर्मोफाइटा, तो वो डिवीजन है। सब डिवीजन के आगे फाइटीना आता है, क्लास के आगे ऑप्सिडा, फाइसिया आता है, ऑर्डर के आगे एल्स आता है। ठीक है, जैसे पोएल्स या मालवेल्स, ये सारे प्लांट के ऑर्डर्स हैं। सब ऑर्डर के आगे इनिया आता है, फैमिली के आगे एसिया आता है, सब फैमिली के आगे ओइडिया आता है। ये कॉमन चीजें हैं जो तुमको याद रहेगी तो बेटर होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
देन अगेन कम्स नेम ऑफ साइंटिस्ट जॉन रे ने क्या किया था, उसने कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज बताया था। एंड अर्नस्ट मेयर ने क्या किया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, जिसको हमने बोला था, जो हम आज फॉलो करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स आपस में मेट कर सकते हैं वो सब आएंगे सेम स्पीशीज में। ओके, देन हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, यहाँ से चालू होता है तुम्हारा सारा वो जो क्वेश्चन जिसमें हम पूछते हैं फादर ऑफ ये कौन है, फादर ऑफ वो कौन है, वो सारा यहाँ से चालू होता है हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी से। एरिस्टोटल क्या था, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। थियोफ्रेटस, ओके, उसने क्या क्या किया था, ही वाज अ फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ बॉटनी। कार्लोस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, इसने ही प्लांट सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया था। कौन से बुक्स लिखे थे। देन बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, बेंथम एंड हुकर का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन का सिस्टम था। फिर उसके मेरिट्स क्या थे, मतलब उसके फायदे क्या थे वो क्लासिफिकेशन के, उसके डीमेरिट्स क्या थे, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। ओके, देन आइसलियर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने फाइलोजेनी या बेसिकली इवोल्यूशन स्टडी करने का ट्राई किया क्लासिफिकेशन से। देन कम्स टैक्सोनॉमिकल एड्स, कौन सी चीजें हम यूज कर सकते हैं फॉर क्लासिफिकेशन। हर्बेरियम, एज आई टोल्ड यू, हर्बेरियम इज बेसिकली आप प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं 11.5 इंटू 16.5 इंचेस के पेपर में। ओके, उसमें वो प्लांट्स का सारा डिटेल दिया होता है। वो प्लांट्स के सारे डिटेल में आपको प्लांट के फ्लावर का नाम, उसका कॉमन नेम, ओके, ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। दैट इज हर्बेरियम, दैट इज कॉल्ड हर्बेरियम। ओके, देन उसके अलावा देर आर म्यूजियम्स में प्लांट या एनिमल स्पीशीज को रखा जाता है प्रिजर्व करके, वहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन होता है। देन कम्स योर फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स सारे प्लांट्स का जो भी इंफॉर्मेशन हमको एक ही जगह पे मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ फ्लोरा। तो ऐसे अलग अलग टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। I'll just show you herbarium sheet, just a second. ये हर्बेरियम शीट इस तरह से दिखता है। हर्बेरियम शीट प्लांट को प्रेस किया गया और यहाँ पर उसका लेबल है, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर। ओके, इस तरह से अलग अलग हर्बेरियम शीट्स होते हैं। देन कम्स योर बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन में सारे प्लांट्स को रखा जाता है प्रिजर्व करके, उनका साइंटिफिक नेम, उनका कॉमन नेम, उनके यूजेस वगैरह के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। जूलॉजिकल पार्क मतलब जू। ओके, जू में एनिमल्स को रखा जाता है, उनके नेचुरल हैबिटेट जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। याद रखो, जू अलग होता है, नेशनल पार्क अलग होता है। नेशनल पार्क में हम पूरा जंगल बचाते हैं, जू में हम एनिमल को जंगल से लेकर दूसरे जगह पर रखते हैं और उसको प्रोटेक्शन देते हैं। उसके बाद की है, की काफी इंपॉर्टेंट है। की इज बेसिकली हम कोई भी चीज को पहचानने के लिए, ठीक है, कोई भी नई चीज को पहचानने के लिए हम उसको सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ की। ओके, की में बेसिकली दो ऑपोजिट स्टेटमेंट होते हैं। दो ऑपोजिट स्टेटमेंट में से हमको एक सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, जो स्टेटमेंट हम सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं लीड। ओके, और फिर हम वो पॉइंट से हमारा क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं कि अच्छा इसमें ये चीजें हैं, तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगेन वी कम टू टू स्टेटमेंट्स, उसमें से हम एक सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो दैट इज बेसिकली की में एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होता है, दो स्टेटमेंट में से हमको एक सिलेक्ट करना होता है एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद दैट। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, कीज एनालिटिकल होते हैं, कीज को हमको पहचानना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। सपोज मुझे कोई एनिमल मिला है,
ओके सपोज वो एनिमल्स के पास 4 लिम्स नहीं है, आगे के हाथ नहीं है, ठीक है, तो मुझे देखना है कि आगे के हाथ कौन से ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं है, ठीक है। रेप्टाइल्स के पास कुछ रेप्टाइल्स के पास लिम्स ही नहीं होते तो वो आएगा, और कुछ होते हैं एव्स, बर्ड्स के पास पीछे के पैर होते हैं, आगे के नहीं होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट हो गए मेरे, उसमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है दैट इज वो बर्ड हो सकता है क्योंकि उसके पास पीछे के पैर तो है। तो फिर मैं देखूंगा कि बर्ड्स में कौन से टाइप के बर्ड्स, इसमें क्या फीचर जो बर्ड के फीचर से मैच होता है, तो अकॉर्डिंगली मैं और 2 स्टेटमेंट जनरेट करूंगा। ओके, जैसे इसके फेदर का टाइप कैसा है, स्मूथ है या फ्रिस्की है, या बीक का स्ट्रक्चर कैसा है, ये कहाँ पे मिलता है, ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट में प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ऑल दैट विल बी कॉल्ड एज की। ओके, देन कम्स फ्लोरा, जहां पर हम लोग एक्चुअली प्लांट और एनिमल को प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट सब पढ़ते हैं, वी गेट द एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट फ्रॉम देयर। देन कम्स द कैटलॉग। कैटलॉग जिस तरह से कोई भी घर पे पेंटिंग करवाते तो वो पेंटिंग का पूरा कैटलॉग देता है कि कौन सा शेड चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। इट इज बेसिकली द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्लांट्स जो पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है, उनका यूजेस क्या क्या है, उनका नाम क्या है, उसने उसको किसने डिस्कवर किया, ये सारी चीजें वो कैटलॉग में होती है। देन कम्स मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप के स्पीशीज का और उनका वो पर्टिकुलर एरिया जहां जहां पर वो ग्रो करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड अ मैनुअल। ठीक है, सपोज तुम्हारे पूरे गार्डन का या तुम्हारे आसपास जितने भी प्लांट्स है उसका पूरा एक कैटलॉग बनेगा, ठीक है, बट सिर्फ तुम्हारे एरिया में या तुम्हारे फील्ड में या तुम्हारे फार्म में कितने प्लांट है उसका एक मैनुअल बनेगा। ओके, देन कम्स मोनोग्राफ। मोनोग्राफ मतलब एक ही चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, एक ही प्लांट के बारे में पूरा सा बड़ा सा इंफॉर्मेशन होता है। ओके, जब हमने पढ़ाया था तब हमने इसको रेस्टोरेंट के मेन्यू से कंपेयर किया था, ठीक है, कि जो मैनुअल है वो पूरा का पूरा मेन्यू होता है, और एक मोनोग्राफ जो होता है उसमें सिर्फ एक ही रेसिपी का पूरा डिटेल में दिया होता है। देन आपको 3-4 फुल फॉर्म पढ़ने हैं। आईसीएनबी, जैसे पहले भी बोला था, आईसीबीएन होगा तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है, आईसीएनबी होगा तो नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया है, आईसीटीवी इज द कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, वायरस का कमिटी अलग होता है। देन वायरस का नॉमेनक्लेचर के लिए आईसीवीएन होता है। देन कल्टिवेटेड प्लांट्स मतलब जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स होते हैं उनके लिए अलग होता है। इससे अलग अलग चीजें हमने ये चैप्टर में पढ़ी थी। ओके, किसी को भी डाउट है ये चैप्टर में, जो लोग पहले नहीं आए थे या जिनका ये मिस हो गया था, या जो लोग ऑलरेडी थे और अभी भी कुछ डाउट है? एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। श्योर? कोई भी डाउट नहीं है पक्का? ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के साथ। हमारा ये चैप्टर हो चुका था, इसके बाद इनफैक्ट जो इसके बाद वाला चैप्टर है डाइवर्सिटी वाला चैप्टर, वो भी हो चुका था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर वायरसेस के बारे में पढ़ा था, अल्काइन लाइकेन के बारे में पढ़ा था, और हमने शायद प्लांट्स किंगडम प्लांटेड थोड़ा सा स्टार्ट किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और तुमको एमसीक्यूज करके आने बोले थे। एमसीक्यूज किए सबने? यस सर। कितने तक किए हैं सबने एमसीक्यूज? सर फर्स्ट लेवल फर्स्ट के 120 है ना उतने। ओके, लेवल फर्स्ट के 120 किए हैं। ओके, कुछ डाउट है उसमें? सर अभी तक तो नहीं है कुछ। ओके, ज्यादा लोग हैं ना, तो जितने भी लोग हैं वापस मैं सबको एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ। लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस जो भी है, ठीक है, रीजन असर्शन टाइप के क्वेश्चंस तक ट्राई करो। ओके, और जो भी डाउट होगा ना वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, मेक श्योर आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, आंसर्स देख के आपको नहीं मार्क करना है, खुद से सीखना है कि कैसे एमसीक्यू सॉल्व किया जाता है।
इज दिस क्लियर? चलो हमने हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था. डिड वी स्टार्ट दिस चैप्टर? No, sir. अच्छा, पूरा ही बाकी है ना. ओके ओके ओके. डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में हमने 5 किंगडम देखे थे. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट और एनिमल. उसमें हमने मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंगाई के बारे में इन डेप्थ पढ़ा था. प्लांट और एनिमल के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है. ठीक है, ये प्लांट का चैप्टर हम पहले देख रहे हैं. प्लांट्स एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरह से उनका डिवीजन होता है, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो मुझे बताओ प्लांट्स में क्या इन जनरल कैरेक्टर्स होते हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म को मैं कभी प्लांट बोलूंगा, उसमें क्या चीजें होनी चाहिए? सब में सेल ऑल होती. ओके, और Cell wall. सेल वॉल होना चाहिए. वेरी गुड. और वो सर हाँ बोलो. हेलो. कुछ डाउट है? नहीं. ओके. हाँ बताओ, प्लांट के बारे में बता रहे थे. प्लांट में और क्या क्या फीचर्स होते हैं? एक तो बोला सेल वॉल वाटर होता है, ट्रैपिंग होती है. ऑटोट्रॉफिक होते हैं. वेरी गुड. सेल इंडिपेंडेंट बोल मेम्ब्रेन सकता हूँ होता है. न्यूक्लियर मैं? मेम्ब्रेन. ओके. इंडिपेंडेंट. आर प्लांट्स इंडिपेंडेंट? Yes. ओके. इंडिपेंडेंट, ऑटोट्रॉफिक और सेल वॉल होता है. इसके अलावा कुछ और? Presence of Generally chlorophyll. non-motile. प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ओके. कौन से प्रोसेस करते हैं ये? Photosynthesis. थैंक यू. यही वर्ड के लिए रुका था मैं. प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसाइज, या प्लांट्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट. ओके. लाइट के मदद से जब भी हम फूड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ओके. फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अकेला ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और ऑक्सीजन मिलता है. यूजुअली जितने भी प्रोसेस हम पढ़ते हैं ना, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. मगर फोटोसिंथेसिस अकेला ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. ओके. तो फोटोसिंथेसिस हमको फूड के अलावा हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमको ऑक्सीजन देता है. तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर एंटायर इकोसिस्टम. ओके. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो. उसके अलावा प्लांट्स के बारे में क्या पता है? सेल वॉल तो देखो, फंगस में भी सेल वॉल होता है, बट इनके पास सेल वॉल किससे बना होता है वो मैं जानना चाहता हूँ. प्लांट का सेल वॉल कोई स्पेशल मटेरियल से बनता है? Cellulose. सेल्यूलोज से बनता है. वेरी गुड. ओके. सेल्यूलोज के साथ साथ और क्या होता है उसमें? और एक चीज होता है, थोड़ा सा सोचो, याद आएगा. पी से कुछ नाम है उसका. पी से. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में होता है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन. सेल्यूलोज के साथ वो बनता है पेक्टिन से. पेक्टिन. याद आया? पेक्टिन. जो भी फ्रूट का तुम छिलका खा जाते हो, जैसे ग्रेप्स, ठीक है, प्रो प्लम आता है, प्लम. वो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स है जिसका हम लोग जो छिलका होता है, जो सीड कोट होता है, वो हम खा जाते हैं. वो उसमें पेक्टिन बहुत ज्यादा होता है. और पेक्टिन हैज फाइबर्स. तो इसलिए बोलते हैं जो कच्चे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको कच्चा खाना चाहिए, पकाना नहीं चाहिए. बिकॉज अभी व्हेन वी कुक इट, यूजुअली ये जो है वो खत्म हो जाता है. ओके. एप्पल. वेरी गुड. बहुत सारे फ्रूट्स हैं इन जनरल. ठीक है. तो पेक्टिन और सेल्यूलोज, ये दो चीजें याद रखो. सेल्यूलोज सबको याद रहता है, पेक्टिन भी याद रखना है. प्लांट का सेल वॉल पेक्टिन और सेल्यूलोज से बनता है. ये दो चीजों से बनता है. लेट्स सी और क्या क्या चीजें हैं इन दिस चैप्टर. In this chapter we will study in detail
about the classification within the plant kingdom. Earlier, fungi and members of modern Protista having cell walls were put under kingdom Plantae. पहले जो क्लासिफिकेशन था जिसमें प्लांट और एनिमल दो ही किंगडम थे, उसमें प्लांट्स में फंगस को भी रखा था, प्रोटिस्टा को भी रखा था, ठीक है, और बैक्टीरिया को भी रखा था. बेसिकली जो जो ऑर्गेनिज्म सबके पास सेल वॉल है सबको प्लांट्स के अंडर रख दिया था, जो बहुत ही अजीब था और जो बहुत ही गलत था, तो उसको चेंज कर दिया है. बट नाउ दे हैव एक्सक्लूडेड from that kingdom. So the cyanobacteria which were considered as blue-green algae are not algae anymore. Cyanobacteria, that is नाम से ही मालूम पड़ता है वो बैक्टीरिया है, उसको blue-green algae बोलते हैं. algae इसीलिए बोलते हैं because वो photosynthesis कर सकते हैं, but that does not mean कि वो plant है या वो algae है. वो अभी भी बैक्टीरिया ही है because they don't have well-developed nucleus. They are prokaryotic. इसलिए साइनोबैक्टीरिया को हम किंगडम प्लांट में नहीं कंसीडर करते. मोनेरा में, हाँ वो मोनेरा में आते हैं, बट वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग ब्लू ग्रीन algae बुलाते हैं, बट वो एक्चुअल में algae नहीं है, दे आर बैक्टीरिया. इज दिस क्लियर? ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि नाम में बैक्टीरिया भी लिखा है, ब्लू ग्रीन algae भी बोल रहे हैं, तो ये क्या है? ये बैक्टीरिया ही है. क्यों बैक्टीरिया है? बिकॉज ये प्रोकैरियोट है, उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, इसलिए ये बैक्टीरिया है. और उसको algae क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फोटोसिंथेसिस. इज दिस क्लियर? यस Yes, sir. Okay. Plant kingdom has been classified in various phases by different scientists. Here we will describe plant under algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. प्लांट में 5 किंगडम होते हैं. आई रिपीट, प्लांट में 5 किंगडम होते हैं. थैलोफाइटा जिसमें आता है algae, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा में जो पी है ना, पी साइलेंट है, पी साइलेंट है. फाइलम होंगे, किंगडम कैसे होंगे? डिवीजन सॉरी, डिवीजन. देयर आर 5 डिविजन्स. किंगडम नहीं, किंगडम प्लांट है, उसके अंदर 5 डिवीजन है. algae, bryophyta, pteridophyta. टेरिडोफाइटा में पी साइलेंट है, इस तरह से 5 डिविजन्स हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं algae के बारे में. algae के बारे में बताओ, algae क्या होते हैं? वाटर algae कहाँ मिलते हैं? algae इन वाटर, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. और सॉल्ट वाटर में होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में होते हैं, सॉल्ट वाटर में नहीं होते, समुद्र में नहीं मिलते algae. ओके, algae फ्रेश वाटर में भी होते हैं, सॉल्टी वाटर में भी होते हैं. इनफैक्ट कुछ algae मॉइस्ट सॉइल में भी होते हैं. आई रिपीट, कुछ algae मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो algae जहां पर मोस्टली एक्वेटिक होंगे, मोस्टली पानी के अंदर रहने वाले होंगे, बट उसके अलावा वो मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं algae. ठीक है. देन algae के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन है? Any other information that you know about algae? Okay, चलो रीड करते हैं हम लोग, क्या है algae. Algae are chlorophyll containing simple thalloid body. Thalloid मतलब, थैलॉइड का मतलब होता है ऐसा बॉडी जिसमें प्रॉपर रूट, स्टेम, लीफ ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं होता है, सिर्फ एक फ्लैट बॉडी होता है. उसमें कोई पार्ट रूट जैसा काम करेगा, कोई पार्ट स्टेम जैसा काम करेगा, कोई पार्ट लीफ जैसा काम करेगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन. ऐसा कोई जैसे नॉर्मल प्लांट में कैसे फिक्स होता है, हम स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं कि अच्छा ये रूट है या ये लीफ है या ये स्टेम है. उस तरह से algae में ऐसा नहीं होता है. Okay, they just have a flat thalloid body. Thalloid मतलब ऐसा बॉडी जिसमें रूट, स्टेम और लीफ हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं. और algae ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफिक है, इसलिए तो वो प्लांट में है. The main characteristic feature of algae are they are largely aquatic, freshwater or marine. They occur in habitats like moist stones, soils and woods. Some of them are associated with lichen and on animals like sloth bear. ये या तो पानी में होते हैं, या तो मॉइस्ट सॉइल में होते हैं, या तो ये मॉइस्ट वुड पे होते हैं. उसके अलावा ये लाइकेन
फंगाई के साथ मिलकर लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन यानी दगड़ फूल, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। लास्ट चैप्टर का जो लास्ट पार्ट था वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन्स के बारे में, उसमें पढ़ा था। लाइकेन्स आर association of fungus and algae. Okay. Also they can live on animals as well. वो एनिमल के ऊपर भी रहते हैं, जैसे वो स्लॉथ बेयर के ऊपर रहते हैं। स्लॉथ बेयर, ओके, स्लॉथ बेयर एक एनिमल है, वो बहुत स्लो होता है, तो उसके ऊपर भी algae ग्रो करता है। Algae are of different size and different forms. The size ranges from microscopic unicellular to colonial forms such as Chlamydomonas and Volvos respectively. या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, या तो कॉलोनीज बना के रहते हैं, या तो बड़े बड़े कॉलोनीज बना के रहते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स। मैच्योर वॉल्वॉक्स इज मेड अप ऑफ न्यूमरस फ्लैजेलेट cells. They may be filamentous also like Spirogyra and Eulothrix. फिलामेंट हो सकते हैं, उनमें धागे धागे लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा में होता है और यूलोथ्रिक्स में होता है। अच्छा, कभी कभी आल्गे ना बहुत बड़े कॉलोनीज फॉर्म कर सकते हैं। कुछ कुछ आल्गे के कॉलोनीज है जो किलोमीटर्स बड़े हैं। आई रिपीट, कुछ कुछ आल्गे के कॉलोनी किलोमीटर्स जितने बड़े हैं। वो समुद्र के ऊपर अगर तुम ऊपर से देखोगे तुमको लगेगा वो पूरा का पूरा आइलैंड है, बट वो एक्चुअली एक आल्गे का कॉलोनी है जो तैर रहा है। ओके, तो इतने बड़े बड़े कॉलोनीज भी फॉर्म होते हैं समुद्र के अंदर। Some of the marine forms like kelps form massive plant bodies. यही बोल रहा था मैं, kelp. Since they are aquatic in nature, water conduction is not required even in the giant forms, and they lack vascular system. वो पानी के अंदर रहते हैं, तो उनको वाटर अब्जॉर्प्शन का, ऐसे कंडक्शन का मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरी सेल इज कनेक्टेड टू वाटर। ओके, तो उनमें जाइलम फ्लोएम का जरूरत नहीं है, बेसिकली वैस्कुलर टिश्यूज का जरूरत नहीं है। ओके, I'll just show you an image of kelp. Kelp exactly क्या होते हैं हम देखेंगे। वो जो बड़े बड़े आल्गे हैं किस तरह से दिखते हैं वो। ये देख सकते हो, ये बड़े 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 फॉरेस्ट होते हैं अंडर वाटर। huge forest above in water. ओके, ये इसको केल्प्स बोलते हैं। Okay, this entire thing which you can see here, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा आल्गे का कॉलोनीज है। तो इस तरह से आपको बड़े बड़े कॉलोनीज दिखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में। दे आर कॉल्ड केल्प्स। Algae reproduce by vegetative, asexual और sexual method. वेजिटेटिव मतलब आगे के कोई पार्ट को हम लोग कट करके कहीं और ग्रो करेंगे, वहां पर कंडीशंस मिलेंगे तो वो वहां से ग्रो होना चालू करेगा, तो उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव मेथड। दूसरा होता है एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड में आएगा फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिशन, ठीक है, या बडिंग, वो सारी चीजें आएंगी एसेक्सुअल में। या तो सेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल मेथड्स में आएगा बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फॉर्म होंगे, दोनों फ्यूज होंगे। Vegetatively, algae produced by fragmentation, a process in which the parent body breaks into two or more fragments. Each fragment develops into a thallus. ठीक है, वेजिटेटिव algae जो होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस होंगे, और हर एक पेरेंट बॉडी जो टूटेगा, सपोज ये algae है,
ठीक है, ये पेरेंट बॉडी है, ये यहाँ से कट होगा, ये यहाँ से कट होगा, तो ये एक अलग आल्गे बनेगा, ये एक अलग आल्गे बनेगा, ये एक अलग आल्गे बनेगा। तो जो इनिशियली जो पूरा पेरेंट बॉडी था, जहां जहां सेगमेंटेशन या जहां जहां कट्स होंगे, that every piece will form a new body or a new algae. Is this clear? A fragmentation in the parent body breaks into 2 or more fragments. Each fragment develops into a thallus. Asexual reproduction gives rise to different types of spores. Spores are released from the parent bodies, which on germination gives rise to new plants. जैसे फंगस में होता है, ठीक है, आल्गे में भी स्पोर फॉर्म होगा। सपोज यहाँ पे स्पोर फॉर्म हो, ये स्पोर गिरेगा दूसरी जगह पर, यहाँ पर कंडीशंस बराबर, तो यहाँ से दूसरा आल्गे फॉर्म होगा। ओके, तो स्पोर्स ये है एसेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं, मगर उसको हम गैमेट्स बोलेंगे। Spores are released on the parent body, which on germination gives rise to new plants. Most common types of spore produced is the zoospore. These are flagellated spores which are motile and on germination give rise to new plants. Mostly flagellated zoospores होते हैं. I repeat, mostly flagellated zoospores होते हैं. ठीक है, flagellated zoospores यानी flagella होगा वो spore के ऊपर, which means that spore is motile. ओके, और वो जहां पर गिरेगा, जहां पर कंडीशन अच्छे होंगे, वहां पर इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। सेक्स ऑर्गन्स आर नॉन जैकेटेड एंड यूनिसेलुलर। नॉन जैकेटेड मतलब कवरिंग नहीं होता है, सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर कवरिंग नहीं होता है। ओके, दे आर यूनिसेलुलर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी आइसोगेमस या एनाइसोगेमस या oogamous। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है, एनाइसोगेमस, आइसोगेमस एंड oogamous। देखते हैं तीनों टाइप में क्या क्या चीजें हैं। अगेन आई वुड सजेस्ट ये सारे टर्म्स में जो जो एग्जांपल आएंगे प्लीज लिख के रखो एक जगह पर। ओके, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसका सारे एग्जांपल्स का एक समरी बना लेना है आपको। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? yes. Okay. Isogamous is fusion of male and female gametes which are similar in size. हमेशा याद रखो the word iso का मतलब होता है similar. Isosceles triangle, isothermal process. Iso का मतलब होता है same. जब भी मेल और फीमेल गैमेट सेम होंगे साइज में, और ये जब गैमेट्स फ्यूज होंगे उसको हम बोलेंगे आइसोगेमस। जब मेल गैमेट का साइज और फीमेल गैमेट का साइज सेम होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आइसोगेमस। The gametes can be either flagellated or non-flagellated। या तो गैमेट्स के पास फ्लैजेला होगा, ठीक है, या तो फ्लैजेला नहीं होगा। ये होगा फ्लैजेला वाला, ये होगा विदाउट फ्लैजेला वाला। एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनस। गैमेट्स आर फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। याद रखना है क्लामाइडोमोनस में गैमेट्स जो है वो फ्लैजेलेटेड है, ओके, और सेम इन साइज है, सिमिलर इन साइज है। क्लामाइडोमोनस में गैमेट्स फ्लैजेला वाले हैं एंड दे आर सिमिलर इन साइज, ठीक है। फ्लैजेलेटेड गैमेट्स को या फ्लैजेलेटेड स्पोर्स को हमने ज़ूस्पोर भी बोला था। फ्लैजेलेटेड स्पोर को हमने ज़ूस्पोर भी बोला था, ठीक है, मगर ज़ूस्पोर यूजुअली हम यूज करते हैं फॉर एसेक्सुअल स्पोर्स। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात चल रहा है, तो यहाँ पर आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous का बात करें। आइसोगेमस सेम टाइप ऑफ स्पोर, या तो फ्लैजेला होगा या तो फ्लैजेला नहीं होगा। एग्जांपल है क्लामाइडोमोनस। नेक्स्ट इज एनाइसोगेमस। Anisogamous is fusion of male and female gametes which are dissimilar in size is termed as anisogamous। इसका भी एग्जांपल है some species of Chlamydomonas। अगर मेल और फीमेल गैमेट का साइज अलग अलग है, जैसे ये है फीमेल गैमेट और ये है मेल गैमेट, ठीक है, साइज ऑब्वियसली अलग अलग है। जब ये दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एनाइसोगेमस। इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का साइज अलग अलग होता है।
एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास के कुछ स्पीशीज में एनाइसोगेमस होता है. Oogamous, it is the fusion of small motile male gametes with a large non-motile female gamete. ठीक है. Oogamous is a fusion of small motile male gametes with a large non-motile female gamete. Example Volvox fucus. जैसे ह्यूमंस में भी होता है, एग मोटाइल नहीं होता है, स्पर्म मोटाइल होता है, स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है. ठीक है. बट हम लोग एनिमल्स में या इन जनरल मैमल्स में जो फ्यूजन होता है उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन नहीं बोलते, उसको oogamous ऐसा नाम नहीं देते हैं. ठीक है. oogamous यूजुअली आल्गे के लिए या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया जाता है, जहां पर मेल गैमेट मोटाइल होता है, साइज में छोटा होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है और वो साइज में बड़ा होता है, और दोनों का जो फ्यूजन होता है उसको हम बोलेंगे oogamous. Life cycle is haplontic in nature and the zygote acts as meiocyte. Haplontic मतलब पता है सबको? What do you mean by haplontic? Haplontic वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? ट्राई कर सकते हैं? ओके, चलो मैं बताता हूँ. Haplontic मतलब the entire life of the plant mostly is in the haploid state. Haploid और diploid पता है सबको, राइट? Yes. Okay, बाकी सबको पता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड. जिसको नहीं पता है प्लीज पूछो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा. हैप्लॉइड डिप्लॉइड पता है सबको? Does everybody know haploid and diploid? नहीं पता है तो बोल सकते हो I can repeat haploid and diploid. ओके, हैप्लॉइड मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है. ठीक है. जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम है. ठीक है. 46 क्रोमोसोम है मतलब उसको हम बोलते हैं 23 पेयर है, राइट? हर क्रोमोसोम का दो दो है. हर क्रोमोसोम का दो है, मतलब हर क्रोमोसोम जोड़ी में है. ओके. तो जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर ये 46 या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो हम उसको बोलते हैं डिप्लॉइड स्टेज. जो हमारा हर सेल में 46 क्रोमोसोम होता है हम बोलते हैं डिप्लॉइड स्टेज. अगर स्पर्म या एग, उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं. स्पर्म में और एग में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं एन. ठीक है. ये 23 क्यों होते हैं? क्योंकि मेल का 23 और फीमेल का 23 मिलके जाइगोट बनेगा, इसमें 46 आएगा. ओके. तो ये जो 23 वाले क्रोमोसोम है उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड. क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड. ऐसा सेल जिसमें सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सेल्स विच हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड. ओके. तो ये जो हैप्लॉइड सेल्स है, अगर पूरा का पूरा लाइफ प्लांट का अगर वो हैप्लॉइड स्टेज में रहता है तो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक. हमारा लाइफ में हमारा मतलब यूजुअली फॉर ह्यूमंस का बात करें तो यूजुअली ह्यूमंस में सिर्फ जाइगोट वाला स्टेज होता है. ठीक है. वहां से डिप्लॉइड स्टेज स्टार्ट होता है. तब तक स्टार्ट होता है जब तक गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं. पूरा का पूरा लाइफ हमारा डिप्लॉइड होता है, एक्सेप्ट जब भी रिप्रोडक्शन का टाइम है तभी हैप्लॉइड चालू होगा, तभी स्पर्म और एग रिलीज होगा और वो फ्यूज होगा. सिर्फ वही स्टेज में हमारा हैप्लॉइड लाइफ आता है, वरना पूरा का पूरा लाइफ हमारा डिप्लॉइड स्टेज में है. तो इस तरह के लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है. मगर कुछ आल्गे होते हैं उनमें पूरा का पूरा लाइफ दे आर हैप्लॉन्टिक, मतलब वो पूरा का पूरा लाइफ हैप्लॉइड सेल की तरह जीते हैं, उसको हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है. एंड उनका जो जाइगोट है दैट एक्ट्स एज अ मियोसाइट. मियोसाइट का मतलब होता है मियोसिस होने वाला सेल. मतलब यूजुअली क्या होता है, मियोसिस से गैमेट बनते हैं. मियोसिस पता है सबको? एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं. आई रिपीट, मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं. ठीक है. तो हमारे में मियोसिस होता है बाय एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म या एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग, तभी हमारे अंदर मियोसिस होता है, वरना मियोसिस नहीं होता है. ठीक है. स्पर्म और एग फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 8 16 का 32,
ये जो भी है वो सबका सब माइटोसिस ही है, दैट इज माइटोसिस ओनली। तो जाइगोट में जाइगोट बनने के लिए मियोसिस होता है, जाइगोट बनने के बाद मियोसिस नहीं होता है कभी, ठीक है। मगर जो प्लांट्स या जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उनमें जाइगोट बनने के बाद मियोसिस चालू होता है, मतलब जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होने के बाद मियोसिस होगा। जाइगोट जो है दैट एक्ट्स एज अ मियोसाइट, मियोसाइट मतलब ऐसा सेल जो मियोसिस करता है। आई रिपीट, जाइगोट एक्ट्स एज अ मियोसाइट, मियोसाइट का मतलब होता है द सेल व्हिच अंडरगोज मियोसिस। ओके, तो जाइगोट 1/4 होगा और फिर उनका लाइफ चालू होगा, इस तरह से उनका लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। हैप्लॉन्टिक बोलो, डिप्लॉन्टिक बोलो, हैप्लो डिप्लॉन्टिक बोलो, ऐसे 3 अलग अलग टाइप के लाइफ साइकिल आएंगे इस चैप्टर में, जो हम लोग चैप्टर के लास्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। कहाँ गया रे? हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे ये वाले डायग्राम पे, और एकदम एंड में हम लोग पढ़ते हैं इसको। हाँ, यहीं पर है, यही वाला। ओके, algae are mainly classified on the basis of different types of pigment। algae को हम लोग algae के अंदर भी और अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे हमने डायग्राम देखा था ब्राउन algae का, जो इमेज दिखाया था तुमको ब्राउन algae था वो, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर पिगमेंट, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से कलर के, उनको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है। फ्लैजेलेशन, क्या फ्लैजेला है उनका, स्टोरेज प्रोडक्ट्स, वो क्या क्या चीजें स्टोर करते हैं, एंड केमिस्ट्री ऑफ द सेल वॉल, उनका सेल वॉल किससे बना है, उसके अकॉर्डिंगली हम algae के अलग अलग टाइप डिसाइड करते हैं। The algae are broadly classified into 3 different types such as chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae, ठीक है। chlorophyceae मतलब ग्रीन algae, क्लोरो मतलब ग्रीन algae, फायो फायो मतलब ब्राउन algae, फायो मतलब ब्राउन algae, एंड रोडो मतलब रेड algae। आई रिपीट, क्लोरो मतलब ग्रीन algae, फियो मतलब ब्राउन algae, फियो या फायो जो बोलना है बोलो चलेगा, राइट है दोनों ही। और रोडोफाइसी, रोडोफाइसी मतलब रेड algae, ठीक है। नाम से मालूम पड़ता है, क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन algae ग्रीन कलर का होगा, फायोफाइसी ब्राउन algae है तो ब्राउन कलर का होगा, और रोडोफाइसी रेड algae है तो रेड कलर का होगा। ओके, अभी हम अलग अलग कलर के algae को डिटेल में पढ़ेंगे। अगेन आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है ना, तो उसमें ना ये क्लासिफिकेशन के ऊपर ना एक टेबल दिया हुआ है। आई रिपीट, क्लासिफिकेशन के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल देख लेना, उसमें ना सारे चीजें दी है कि कौन से algae में कौन सा स्टार्च स्टोर होता है। जस्ट अ सेकंड, इफ आई हैव दैट पीडीएफ आई विल फाइंड इट आउट फॉर यू। प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर दो। माइक्रोफोन ऑफ कर दो, बाद में बजाओ जो बजा रहे हो। ओके, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ यस। ओके, ये रहा वो टेबल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। क्लोरोफाइसी ग्रीन algae होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी होता है। इट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बनता है सेल्यूलोज से, और फ्लैजेला उसके 2 या 8 होते हैं। फ्रेश वाटर में होता है ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर मतलब जो खाड़ी वाला पानी हाँ होता है ना, खाड़ी वाला पानी कभी ज्यादा खारा होता है, कभी हाँ कम यस। खारा होता है, वैसे टाइप के पानी को हम लोग ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। और सॉल्ट वाटर में होता है
देन कम्स थियोफाइसी या ब्राउन algae. ब्राउन algae में होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजैंथिन. ये फ्यूकोजैंथिन याद रखो, फ्यूकोजैंथिन. ओके, ये फ्यूकोजैंथिन की वजह से उसको ब्राउन कलर मिलता है. इट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल एंड लेमिनार. इसमें सेल वॉल बनता है सेलुलोज और एल्जिन से. एल्जिन एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिससे हम लोग जेली बना सकते हैं. जेली खाया है सबने? Yes. तो जेली बनाने के लिए जो पाउडर डालते हैं ना, अगार पाउडर बोलते हैं उसको, वो अगार यहीं से मिलता है, देखेंगे हम लोग. और फिर उसके फ्लैजेला 2 होते हैं, अनइक्वल मतलब अलग अलग साइज के होते हैं. फ्रेश वाटर में होता है, सॉल्ट वाटर में होता है और ब्रैकिश वाटर में होता है. उसके बाद रोडोफाइसी मतलब रेड algae. इसमें होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन. ओके, क्लोरिडीन स्टार्च होता है इसमें, सेल्यूलोज होता है, पेक्टिन होता है और पॉलीसल्फेट एस्टर्स होता है. सेल्यूलोज होता है, पेक्टिन होता है और पॉलीसल्फेट एस्टर होता है. और ये इनके पास फ्लैजेला नहीं होता. रेड algae के पास फ्लैजेला नहीं होता है. ओके, तो ये एक टेबल है जो आपको काम आएगा, वो टेबल आप रेफर कर सकते हो. देखते हैं क्लोरोफाइसी में और क्या क्या है. हेलो, सुनाई दे रहा है? Yes. Yes. ओके, क्लोरोफाइसी पे कंटिन्यू करते हैं हम लोग. द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन algae. पिगमेंट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और xanthophyll. दे आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी. क्लोरोफिल ए और बी का कंटेंट ज्यादा होता है तो वो ग्रीन होते हैं कलर में. ओके, द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट is different. The shape of the chloroplast varies in different species. कभी कभी डिस्कॉइड होता है. डिस्कॉइड मतलब डिस्क शेप का होता है, प्लेट जैसा होता है, रेटिकुलेट होता है या कप शेप होता है या स्पाइरल होता है, रिबन शेप होता है. अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं. प्लांट बॉडी यूनिसेलर होगा, कॉलोनियल होगा या फिलामेंटस होगा. यूनिसेलर मतलब सिर्फ एक ही सेल का होगा, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये यूनिसेलुलर है. फिलामेंटस मतलब ऐसे धागे धागे वाला होगा. कॉलोनियल मतलब कॉलोनी बना के रहता होगा, बहुत सारे छोटे छोटे फंगस साथ में algae साथ में रहते हैं और पूरा का पूरा कॉलोनी बनाते हैं. इसको हम बोलते हैं कॉलोनियल. ओके, यूजुअली हमको जितना भी फंगस algae दिखता है, दैट इज ऑल कॉलोनियल. मोस्ट ऑफ द ग्रीन algae contain pyrenoids which stores proteins and starch. मोस्टली सारे algae में पायरिनॉइड होता है जो स्टार्च और प्रोटीन स्टोर करता है, However, some algae store food in the form of oil droplets. और कुछ algae में फूड स्टोर होता है in the form of oil droplet. ऑयल के ड्रॉपलेट या फैट के ड्रॉपलेट की जैसे स्टार्च स्टोर होता है. Cell wall in green algae is made up of cellulose and outer layer of pectose. Pectose और pectin काफी सिमिलर होता है. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. मतलब ये algae को कट करो, कहीं और ग्रो करो तो वहां से नया algae ग्रो करेगा. फ्रेगमेंटेशन से उनका asexual reproduction होता है. Asexual reproduction takes place by zoospores which are produced under zoosporangia. Please microphone off कर दो. Reproduction takes place by fragmentation. Asexual reproduction होगा by zoospores. Okay, zoospores present होंगे उनके पास zoosporangia मतलब ये algae के ऊपर एक बॉडी आएगा जिसको हम बोलेंगे zoosporangia और ये zoosporangia के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. Sexual reproduction shows a lot of variation in the formation and characteristics. Please microphone off कर दो. प्लीज जिसका माइक्रोफोन ऑन है ऑफ कर दो.
Sexual reproduction shows a lot of variation in the formation of type of sex cells, and it can be isogamous, anisogamous और oogamous. Sexual reproduction होता है, अलग अलग टाइप के सेक्स सेल्स होते हैं, या तो आइसोगेमस होगा, आइसोगेमस मतलब सेम टाइप के मेल और फीमेल गैमेट होंगे. हेलो, चलो हाँ बोलो. सेम टाइप के मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, या तो अलग अलग साइज के हो सकते हैं, या तो oogamous मतलब मेल गैमेट छोटा होगा, मोटाइल होगा, और फीमेल गैमेट बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा. Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra and Cara. ऐसे अलग अलग टाइप के कॉमन ग्रीन algae है, जिसके इमेजेस तुमको यहाँ मिल जाएंगे. टेक्स्ट बुक में कलर्ड इमेजेस है. ये है वॉलवॉक्स. ये देखो यहाँ पे तुमको पेरेंट कॉलोनी, ये जो बड़ा ग्रीन है वो पेरेंट कॉलोनी, और उसके अंदर 3 छोटे छोटे कॉलोनीज दिख रहे हैं, दैट इज डॉटर कॉलोनी. ये स्पाइरोगायरा. ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा दिया है, ग्रीन algae, ब्राउन algae, रेड algae सबका एग्जांपल दिया है. ओके, इसका अगर रियल इमेज देखना है तो यहाँ देख सकते हैं हम. ये स्पाइरोगायरा जो हमने कॉमनली देखा है, सबसे ज्यादा जो algae हम देखते हैं वो यही वाला है. वो इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से पत्थरों के ऊपर होता है, जब पानी में ऐसे ग्रो करता है. उसको एक एक देखेंगे तो वो इस तरह से कुछ दिखेगा. ये स्पाइरोगायरा है. ओके, इसको मरीन सिल्क भी बोलते हैं. वॉलवॉक्स काफी अच्छा दिखता है. ये है वॉलवॉक्स. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के algae है ग्रीन algae में. ये एक वॉलवॉक्स के अंदर छोटे छोटे जो डार्क ग्रीन कलर के दिख रहे हैं तुमको, वो छोटे छोटे डॉटर कॉलोनीज है. ठीक है, फिर क्लामाइडोमोनास और कारा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग है. तो ये हुआ ग्रीन algae के बारे में. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ब्राउन algae के बारे में और रेड algae के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं. फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी डाउट है किसी को, फर्स्ट चैप्टर में और आज वाले पार्ट में, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट है.